Namaskaram. So today I'm here to teach you some great pranayam to improve your immunity and your lung capacity. आप सभी को पता है अब इस देश में और पूरे संसार में इस टाइम कोरोना की लहर आ रखी है। कई देश इससे अभी जूझ चुके हैं और कई देश जैसे कि इंडिया एंड ब्राज़ील अभी भी इससे जूझ रहे हैं। तो इस वक्त हम क्या कर सकते हैं? इस वक्त हमें अपने अंदर इम्यूनिटी इतनी जागृत करनी है कि अगर कोरोना में हिट करता है तो एटलीस्ट हम उसको सर्वाइव कर जाएं। Vaccination is there. Every person above 18 years should get themselves vaccinated. But also, what's more important is that you have your own immunity inside you that works for you. So, what pranayam does to your body is it firstly increases your immunity to fight the infection like viruses and the bacteria, not only COVID, but other diseases also. And secondly, what pranayam actually does is it increases the lung capacity. So when you're breathing and breathing in and breathing out, what it actually is doing is it increasing the lung volume. Normally, if you're breathing your tidal volume, what you're normally breathing, like unknowingly, unconsciously, most of the people who breathe, they are unconscious how they're breathing. And that's almost like 500 ml at most. So what we are doing through few minutes of pranayam is that we are increasing that capacity, so the whole of the lung is getting oxygenated. तो जो आपका पूरा यहाँ पे लंग है, कई लोब्स होते हैं अगर आप मेडिकली जाएंगे जिनको ऑक्सीजन नहीं मिलती है। अगर आप प्राणायाम करते हैं तो उन लोब्स को भी ऑक्सीजन मिलती है बिकॉज आपका पूरा लंग वर्क कर रहा होता है उस टाइम। तो आज हम कुछ ऐसे प्राणायाम की टेक्निक्स सीखेंगे जिससे हम अपनी लंग कैपेसिटी बढ़ा सकते हैं और साथ में ही हम अपनी इम्यूनिटी भी इंक्रीज़ कर सकते हैं। बीइंग अ साइकेट्रिस्ट एंड अ योगा टीचर, आई अंडरस्टैंड द टाइम वी आर फेसिंग राइट नाउ. Firstly, people are getting infected with COVID. Secondly, a lot of people have this scariness inside them. What will happen to them? What if they get infected? So I totally understand the kind of anxiety you might be facing being a psychiatrist. But being a yoga teacher, I'm also here today to help you all to increase your immunity and have a stable mental and physical well-being. So we'll do some pranayam today. Let's start. So before starting, we will sing an invocation to Patanjali, Lord Patanjali, the Guru of Yoga. So just fold your hands, keep in Namaste Mudra, gently close your eyes. First we will sing 3 times Om. Inhale. 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 योगेन चित्तस्य पदेन वाचं मलं शरीरस्य च वैदिकेन योपाकर्तं प्रवरं मुनिनं पतञ्जलिं प्राञ्जलिं प्रणतोऽस्मि आभागुपुरुषकारं शङ्खचक्रास्यधारिणं सहस्रशीर्षं श्वेतं प्रणमामि पतञ्जलिं. Hari Om. Gently bow down and open up your eyes. With a gentle smile, we'll start off with this practice. So, what's more important right now is that we focus on our breathing, how we are breathing.
So first we will do Om mantra chanting. This basically Om is made up of three words A, U, Ma. Now the resonation of this word Akara, Ukara and Makara, A, U, Ma, when you join it, Aum, it forms Om. So the resonation of this Om in itself produces a great energy change inside you, that you will feel a, a different type of positivity. एक अलग ही आपको एक अलग ही चीज़ अंदर एनर्जी फील होगी जब आप इस पूरे ओमकारा के चैंटिंग को आप कंप्लीट करेंगे. इसे हम करेंगे कैसे? पहले हम करेंगे अकारा, जिस पे हम फोकस करेंगे नीचे, आ उ मा. ऐसे कर कर हम ऊपर को ले जाएंगे. हाथ जोड़ भी सकते हैं, हाथ नीचे भी रख सकते हैं ऐसे चिन मुद्रा में. ओमकारा को जब हम चैंटिंग करेंगे सो हम कहेंगे आ उ मा, आ. This all depends on your capacity, whether you complete it in 5 seconds, one chanting, or whether you take it to 30 seconds. It's all depends on your lung capacity. Now, other than producing a vibration, what also it does is it increases your lung capacity, as I mentioned, because when you're inhaling and you're sustaining the breath, the lung capacity really increases to the maximum. Slowly and slowly, if you can do it for 10 seconds right now, you will be able to do it for maybe after a few weeks till 30 seconds, 40 seconds in one breath. So I'll keep my hands in Chin Mudra. You can keep it in Chin Mudra or Namaskara Mudra. And inhale. Once more, inhale. While doing this, please keep a focus that Akara, Ukara and Makara should all be equal in length. So if you're giving 2 seconds for Akara, you will do the same, 2 seconds for U, 2 seconds for Inhale once again. Once more. Gently open up your eyes. So this normally I'm teaching you less on this video, but when you're doing it yourself, at least try to do 21 times in one stretch. So जब आप ये करेंगे तो एक तो इससे आपका ध्यान रहेगा, बिकॉज जो ओमकारा मंत्र है वो एक बहुत ही पॉजिटिव वाइब्रेशन देता है. तो अब जब आँख बंद करेंगे और इसको आप महसूस करेंगे अंदर आ उ म को ऊपर जाते हुए, तो आपके हार्ट चक्र से थ्रोट चक्र और आपके ऊपर थर्ड आई पे जाता है अनाहता विशुद्धि एंड दाग्य चक्र. तो आप महसूस करेंगे एक अलग ही पॉजिटिविटी अंदर आ गई है आपके. तो ये एक तो साथ में आपके लंग कैपेसिटी इंक्रीज़ करेगा, और साथ ही साथ ये आपको मेडिटेशन, एक तरह की मेडिटेशन है जिसको आप कम से कम 21 बार 21 टाइम्स करना चाहिए. द नेक्स्ट प्राणायाम इन द लाइन अप इज नाड़ी शोधना, जिसे हम बोलते हैं अनुलोम विलोम प्राणायाम, द ऑल्टरनेट नॉस्ट्रल ब्रीदिंग. नाउ व्हाट ऑल्टरनेट नॉस्ट्रल ब्रीदिंग इज डूइंग इज, इसमें हम करेंगे क्या? नॉर्मली जब आप देखेंगे अपनी आप सांस लेते हैं तो आप बहुत टाइम नोट करते हो कि आपकी एक ही नाक चल रही होती है, या तो बाएं चलेगी या दाएं चलेगी. नॉर्मली एक फिनोमेना है जो गॉड ने हमें दिया है, जिसमें हमारे नॉस्ट्रल की जो ब्रीदिंग है, जो हमारी नाड़ी है ईड़ा और पिंगला, वो स्विच होती रहती है हर घंटा 1.5 घंटे में, जो हमें नहीं पता चलता. बट आप जब नोट करोगे तो इसमें आपको पता चलेगा कभी आपकी बाएं चल रही है, कभी दाएं चल रही है, कभी दोनों चल रही है, जिसको हम बोलते हैं सुषुम्ना.
आज जो ये हम प्राणायाम कर रहे हैं इसका मकसद क्या है? इसका मकसद है जब एक नाड़ी काम करती है आपकी तो आपका एक साइड ब्रेन एक्टिवेट होता है। जब आपकी बाएं नाड़ी काम कर रही होती है तो आपकी दाएं ब्रेन पे इफेक्ट करता है। ऐसी जब दाएं नाड़ी से आप सांस लेते हैं तो बाएं पे इफेक्ट करता है। नॉर्मली हमें जब नहीं पता होता तो हम एक ही साइड का ब्रेन यूज़ करते हैं और हम उसी तरह से अपना जीवन व्यतीत करते हैं। लेकिन जब हम ये प्राणायाम करते हैं तो हम एक इक्विलिब्रियम में आ जाते हैं, द स्टेट वी कॉल्ड इक्विलिब्रियम। In that, what we are doing is we are giving equal chance for both side of the brain to work. दोनों साइड के ब्रेन काम करते हैं। तो आज हम जो ये प्राणायाम करेंगे, आपने कई लोगों ने इसको किया होगा लेकिन इसका महत्व नहीं जानते होंगे। एक तो जब आप कर रहे हैं तो उस प्रेजेंट मोमेंट में आप फोकस हो जाते हो, लिविंग एट द प्रेजेंट मोमेंट। यू आर नॉट थिंकिंग अबाउट फ्यूचर, यू आर नॉट थिंकिंग अबाउट पास्ट। दूसरी चीज़, ये प्राणायाम आपके दोनों साइड ब्रेन को बैलेंस करता है, जिसके वजह से आपकी एंग्जाइटी, आपको चाहे डिप्रेशन है, आपको जो भी बीमारी है पूरे शरीर में, ये हर बीमारी का एक तोड़ है। प्राणायाम की अलग अलग टेक्निक्स होती है। हम अंतर कुंभक करते हैं, बाहर कुंभक करते हैं, रेचक करते हैं। इसमें होता क्या है, वी आर अप्लाइंग द कुंभकस। दैट आई विल नॉट बी टीचिंग टुडे बिकॉज इट्स एन एडवांस टेक्निक एंड मोस्ट ऑफ द व्यूअर्स जो आज मेरे साथ जुड़े हैं यहाँ, कई लोग पहली बार योगा कर रहे होंगे, कई लोग एजेड होंगे। तो कुंभक जो होता है जिसमें हम होल्ड करते ब्रेथ, वो एक सर्टिफाइड योगा टीचर के साथ ही मिलकर करनी चाहिए ताकि वो आपको देख सके। बिकॉज अगर आप वो गलत करते हैं तो उसका परिणाम नेगेटिव भी हो सकता है बॉडी में। इसलिए जब भी आप प्राणायाम करें, जैसे मैं सिखा रहा हूँ करिए। अगर आपको कुंभक करना है तो आपके आसपास कोई योगा आश्रम होगा, कोई योगाचार्य होंगे, उनसे मिलिए, उनसे पूछिए कि कैसे करना है, वो आपको सामने सिखाएंगे आपके, तब आप कर सकते हैं। सो विल स्टार्ट डूइंग दिस टुडे। व्हाट वी विल डू इज we will inhale from left, exhale from right, inhale from right, exhale from left. So एक नाड़ी लेफ्ट से बाएं से हम सांस अंदर लेंगे, दाएं से हम छोड़ेंगे, दाएं से फिर हम अंदर लेंगे और बाएं से छोड़ेंगे। ये मैंने अपनी पहली भी वीडियो में सिखा रखा है। इसमें हमें अभी के लिए एक चीज़ ध्यान रखनी है, हम चाहे 5 सेकंड अंदर लें चाहे 10 सेकंड अंदर लें, हमें उतना ही अभी बाहर छोड़ना है। 1:1 का रेशियो हम स्टार्टिंग में मेंटेन करेंगे। इनहेल फॉर 5 सेकेंड, अगर आप 5 सेकेंड इनहेल कर रहे हैं तो एक्सहेल भी 5 सेकेंड के लिए होगा। तो इसमें हम एक मुद्रा कर सकते हैं, 2 उंगलियों को बंद कर सकते हैं या इसको तीसरी आँख जिसको हम थर्ड आई बोलते हैं यहाँ रख सकते हैं। थंब से हम राइट नॉस्ट्रिल क्लोज करेंगे, जो दूसरी 2 फिंगर्स है उससे हम लेफ़्ट नॉस्ट्रिल क्लोज करेंगे। तो हम ऐसे ऑल्टरनेट करेंगे। मैं ज़्यादातर प्रेफर करता हूँ कि मैं इसको अपने थर्ड आई में रखूँ। तो स्टार्ट करते हैं। एक्सहेल करते हुए बाएं साइड से, अब हम अंदर सांस लेंगे बाएं साइड से, बाएं नासिका को बंद कर कर दाएं नासिका से हम छोड़ेंगे। अब हम दाईं नासिका से ही सांस अंदर लेंगे और दाईं नासिका को अंगूठे से बंद कर कर बाईं नासिका से छोड़ेंगे। एक बार और, बाईं नासिका से सांस अंदर, बाईं नासिका को बंद किया, दाईं नासिका से छोड़ा, फिर दाईं नासिका से ही सांस अंदर लेते हुए बाएं नासिका से छोड़ेंगे। इसमें करते हुए आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है, कई लोग बहुत तेज़ी से करते हैं, ऐसे नहीं करना है। बहुत ही काम वे से, बहुत ही निर्मलता से हमने ये करना है। इतना होना चाहिए कि आपके आसपास अगर कोई है तो उनको आवाज़ नहीं आनी चाहिए आपकी सांस की। और कोशिश करिए आप अपने पूरे लंग को भरें। धीरे धीरे आप नोट करेंगे, शायद आप अभी 5 सेकंड अंदर सांस ले रहे हैं तो आगे जाकर आप 10 सेकंड भी अंदर सांस ले पाएंगे। ये एक और तरीका है, एक और प्राणायाम है बहुत ही सुंदर, जिससे आप अपनी लंग कैपेसिटी भी इंक्रीज़ कर सकते हैं। जैसे आपकी लंग कैपेसिटी इंक्रीज़ होगी, आपके लंग्स को
ऑक्सीजन ज़्यादा मिलेगी और आपके लंग्स पहले से बेटर काम करेंगे। आप सबको पता है जब कोविड अटैक करता है वो लंग पे अटैक करता है या पेट पे अटैक करता है ज़्यादातर पहले। सो अगेन इनहेल फ्रॉम द लेफ्ट, एक्सहेल फ्रॉम द राइट, इनहेल फ्रॉम द राइट, exhale from the left. You can gently open up your eyes. So this pranayam can be done for at least 10 minutes. जिसका अगर आपको पूरा फ़ायदा उठाना है, कई लोग 2 मिनट करते हैं, कई लोग 3 मिनट करते हैं, मिनिमम मैं बोलूँगा अगर आप 10 मिनट ये प्राणायाम कर रहे हैं तो आपको इसका फ़र्क, जो इसका फ़ायदा है वो दिखने लगेगा। जब आप ये 10 मिनट प्राणायाम कर लेंगे उसके बाद आप शांत बैठेंगे 2 से 3 मिनट और इसका जो प्रभाव आया शरीर में उसको महसूस करने की कोशिश करेंगे। आपको लगेगा कि आपकी दोनों जो नाड़ी है वो चलने लग गई है। 10 मिनट ये करने के बाद अब हम एक प्राणायाम करेंगे जिसे हम बोलते हैं कपालभाति। कपालभाति में हम क्या करेंगे, अपने पेट में हाथ भी रख सकते हैं। बेसिकली जो हमारा फोकस है वो स्टमक में रहेगा। द मेन फोकस शुड बी ऑन योर स्टमक। नाड़ी शोधना में हम चीज़ सारी लंग से कर रहे थे, लंग से सांस ले रहे थे, लंग से निकाल रहे थे। कपालभाति में हम सांस पेट से छोड़ेंगे। जब हम सांस अंदर लेंगे वो ऑटोमेटिकली होगा। हमने अगर हाथ रखा, आप देखिए अंदर गया, जब मैंने पेट को ढीला छोड़ा सांस ऑटोमेटिकली अंदर आ जाएगी। तो इसका प्रोसीजर जो होता है एक्टिव एक्सलेशन, पैसिव इनहेलेशन। तो जब आप सांस छोड़ते हैं किसी चीज़ को, जैसे आप बलून को देखेंगे, आप दबाएंगे, एक जैसे ब्लड प्रेशर मॉनिटर का एक कफ होता है, दबाएंगे, आप छोड़ेंगे तो खुद ही चले जाता है। तो एक्टिवली बाहर कर रहे हैं, लेकिन जब छोड़ते हैं तो खुद ही फूल जाता है वो। ऐसी पेट के साथ है, छोड़ा बाहर, जैसे आप पेट को ढीला छोड़ेंगे सांस अपने आप अंदर जाएगी। तो जो इसका मेन हमने ध्यान रखना है, इसमें सिर्फ बाहर छोड़ने की आवाज़ आएगी, सांस की अंदर लेने की नहीं आएगी। शरीर में कोशिश करिए हमेशा एक अकड़नपन ना हो, ढीले रहे शोल्डर्स, और जो एक स्माइल होती है, मुस्कुराहट, चेहरे पे हमेशा एक जेंटल सी स्माइल रखिए, एक पॉजिटिविटी हमेशा रहनी चाहिए। जेंटली क्लोज योर आइज एंड लेट्स स्टार्ट। थर्टी राउंड्स कंप्लीट होने के बाद रिलैक्स करिए। जब भी आप ये प्राणायाम कर रहे हैं ध्यान रखिए कि आपके चेहरे पे किसी तरह का तनाव ना हो। कई लोग ऐसे करते हैं, अगर चेहरे पे तनाव आ रहा है तो गलत है। सिर्फ आपका स्टमक मूव करेगा और कोई शरीर का अंग मूव नहीं करेगा। इस प्राणायाम को एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है, अगर आपका हाई ब्लड प्रेशर है और अगर आपका हर्निया का ऑपरेशन हुआ है या किसी भी पेट का ऑपरेशन रिसेंटली हुआ है तो प्लीज़ ये प्राणायाम ना करें। ऑल्सो अगर आपको एंग्जाइटी ज़्यादा रहती है, कई लोगों को इस टाइम बहुत एंग्जाइटी है, तो कोशिश करिए ये प्राणायाम थोड़ा कम इंटेंसिटी से करें या फ़िलहाल के लिए ना करें। तो कल ही मेरी एक अपने दोस्त से बात हो रही थी, उससे एंग्जाइटी रहती है 3 साल से, और उससे मैंने पूछा आप क्या करते हो, बिकॉज़ वो योगा करती है, बट वो ये प्राणायाम कर रही थी हर रोज़। और कोविड है, उसका कोविड हो गया अभी, होपफुली वो जल्दी रिकवर कर जाएगी। लेकिन अगर आपको एंग्जाइटी रह रही है और उस टाइम आप ये कर रहे हो तो हो सकता है कि आपकी एंग्जाइटी बढ़ जाए। इसलिए ये प्राणायाम कम इंटेंसिटी, दैट मीन्स कैसे, इतनी तेज़ नहीं करना, हल्का कर सकते हैं, ऐसे कर सकते हैं, या फिर थोड़े टाइम के लिए आप इसको छोड़ भी सकते हैं। नाड़ी शोधन जो प्राणायाम है वो बहुत अच्छा है एंग्जाइटी के लिए, वो अच्छा है डिप्रेशन के लिए, वो हर चीज़ को बैलेंस करता है। तो कपालभाति जैसे हमने 30 राउंड करे, ऐसे आप स्टार्टिंग में 30-30 के 3 राउंड कर सकते हैं। अगर आपकी बॉडी अलाउ नहीं करती तो 20 के भी कर सकते हैं। कई लोग एट अ स्ट्रेच 300 भी करते हैं, 500 भी करते हैं। आपको धीरे धीरे इसको बढ़ाना है, एकदम से नहीं, ठीक है। अब हम दूसरे प्राणायाम पे मूव ऑन करेंगे जिसे हम बोलते हैं भस्त्रिका। भस्त्रिका में हम क्या कर रहे हैं, पेट पे ही फिर से हम फोकस करेंगे, लेकिन इस बार हम सांस अंदर लेंगे और सांस बाहर छोड़ेंगे। इनहेल एंड एक्सहेल एक्टिवली।
इसमें भी ध्यान रखना है कि अगर आप हार्ट पेशेंट हो, हाई ब्लड प्रेशर है, सर्जरी हुई है कोई पेट की, आप इससे किसी मेडिकल डॉक्टर या योगाचार्य से पूछिए, उसी के बात करिए। रीसेंट सर्जरी अगर हुई है ना करिए। हार्ट में अगर कोई दिक्कत है या ब्लड प्रेशर है तो नॉर्मली इसे करना सही नहीं है जब तक आपका ब्लड प्रेशर कंट्रोल ना हो जाए। अगर ब्लड प्रेशर थोड़ा सा ज़्यादा रहता है तो आप इसे कर सकते हैं, लेकिन कम इंटेंसिटी से। अब हम इसमें वैसे ही करेंगे अंदर बाहर, लेकिन इसमें भी ध्यान रखना है। इसमें हम क्या कर रहे हैं, अपनी कैपेसिटी फिर से बढ़ा रहे हैं। नॉर्मली हम ब्रीदिंग कर रहे हैं अनकॉन्शियसली, अगेन इसमें हम कॉन्शियसली कर रहे हैं, और उसके कारण जो हमारी लंग की कैपेसिटी है वो भी बढ़ रही है। फोकस हम पेट पे करेंगे, लेकिन आपकी जो एयर है वो ऑफकोर्स लंग में भी जाती है। तो हम कैसे करेंगे, फिर से चिन्ह मुद्रा में। इससे कई बार लोगों को चक्कर आता है क्योंकि इतनी इंटेंसिटी के साथ होता है। तो हम पहले जो करेंगे वो सिर्फ 10 राउंड्स, 10 राउंड करेंगे, ठीक है। फिर से एक थोड़ी सी मुस्कुराहट चेहरे पे, आंखें बंद, सांस अंदर लेकर बाहर छोड़ेंगे। और विश्राम करेंगे। इसको भी हम स्टार्टिंग में 10-10 के 3 राउंड करेंगे। धीरे धीरे आप इसको 15-15-15, 20-20-20 ऐसे बढ़ा सकते हैं, जैसे जैसे आप धीरे धीरे बढ़ेंगे। तो ये तो हुए 3 प्राणायाम जिसके से हम अपने लंग को, हम अपने कैपेसिटी जो लंग की है और हमारी इम्यूनिटी पे भी ये बहुत ही अच्छा प्रभाव करता है। इन दिस लाइनअप वी हैव वन मोर प्राणायाम दैट इज़ कॉल्ड चंद्र भेदन। स्पेशली जिनको एंग्जाइटी रहती है या जो लोग इस टाइम बहुत ही गर्म जगह में रह रहे हैं। लाइक यू ऑल नो, इंडिया राइट नाउ इज़ हैविंग समर सीजन एंड द वेदर इज़ हॉट। सो ऑल द पीपल, जितने भी आप लोग हैं जो गर्म कंट्रीज़ में अभी रह रहे हैं, अभी अगर वहाँ पे समर चल रहे हैं, तो चंद्र भेदन प्राणायाम आपके लिए बहुत अच्छा है। चंद्र भेदन बेसिकली अगर आपको एंग्जाइटी हो रही है इस टाइम, बहुत ही आपके लिए काम करेगा। आपको अगर लगता है कि बाहर क्या हो रहा है, ये वर्ल्ड में क्या हो रहा है, पैंडेमिक आ गया, कपाल भाती को कम कर कर हम चंद्र भेदन में मूव ऑन कर सकते हैं। चंद्र भेदन का मतलब है ईड़ा, बाएं नाड़ी। सूर्य भेदन का मतलब है पिंगला, राइट नाड़ी, द राइट नॉस्ट्रल। चंद्र क्या है, चंद्र एक ठंडक है। जैसी चांद ऊपर आता है, एक ठंडक आ जाती है, एक कूलनेस आ जाती है। इसलिए हमारी बॉडी भी ऐसी बनी है। अगर आप चाहेंगे, पुराने ज़माने में आप पढ़ेंगे वेदास और उपनिषद, ये उसमें मेंशन्ड है कि जो हमारी शरीर है, जो हमारी नाड़ीज़ है, ईड़ा और पिंगला, ये ऐसे काम करती है। इससे पहले हमने इसको बैलेंस किया। चंद्र भेदन में सिर्फ हम चंद्र नाड़ी को एक्टिवेट करते हैं। अगर आप किसी ठंडे देश में रहते हैं तो इस प्राणायाम को उस समय मत करिए, आप उस टाइम सूर्य भेदन कर सकते हैं। तो अभी हम चंद्र भेदन के बारे में बात करेंगे, बिकॉज आज की डेट में कई लोगों को कोविड के चलते एंग्जाइटी बहुत हो रही है। इसमें क्या करना है, हमने वैसी ही विष्णु मुद्रा बनानी है। बाएं से सांस लेना है, दाएं से छोड़ना है, बाएं से लेना है, दाएं से छोड़ना है। ब्रीदिंग फ्रॉम लेफ्ट, ब्रीदिंग फ्रॉम आउट फ्रॉम राइट, inhaling left, exhaling right, inhaling left, exhaling right. So it's the same, inhale, exhale, inhale, exhale, inhale, exhale, left inhale, right exhale. In this we are not doing left right, सिर्फ हम लेफ्ट से इनहेल करेंगे, राइट से छोड़ेंगे। इसके भी मैं आपको कर कर दिखाते हैं, एक साथ करते हैं। अपनी दाई नासिका को बंद कर कर बाई नासिका से लेफ्ट नॉस्ट्रल से सांस अंदर लीजिए। बाएं नासिका को बंद कर कर राइट नॉस्ट्रल से छोड़िए। फिर से हम बाएं नासिका को खोल देंगे इस बार और सांस अंदर लेंगे, और दाएं से हम बाहर छोड़ेंगे। इनहेलिंग फ्रॉम द लेफ्ट, क्लोजिंग द लेफ्ट नॉस्ट्रल, एक्सहेलिंग फ्रॉम द राइट। Again inhaling from the left,
and exhaling from the right. So in this pranayam, we are again focusing on equal inhalation and exhalation, 1:1 ratio, and we are focusing on our lungs. We are again increasing the capacity. Very good pranayam for people who have anxiety. But if you are a person who easily catches cold, what it does to your body, it really cools you down. बहुत ही आपके अंदर ठंडक पहुंचाता है. तो अगर आप ये सर्दी में करते हैं या आप ऐसे हैं जिनको ठंड बहुत जल्दी लग जाती है, तो ये प्राणायाम आपके लिए नहीं है. बिकॉज इससे क्या है, आपके शरीर में एक ठंडक आती है. तो इसलिए हम क्या करते हैं, नाड़ी शोधन जब करते हैं उससे हम बैलेंस करते हैं. ये प्राणायाम बहुत अच्छा है अगर गर्मी है. अगर सर्दी है तो इसी का उल्टा होता है सूर्य भेदन. वो मैं आपको अगली बार सिखाऊंगा. तो आप सभी से मेरा निवेदन है कि आज जो मैंने आपको प्राणायाम सिखाया है, इसके साथ अब अगर आप चाहें तो सूर्य नमस्कार जोड़ सकते हैं. एटलीस्ट 12 राउंड करिए सूर्य नमस्कार के. उससे क्या होगा कि आपका जो एक आसन का भी एक प्रक्रिया है, सूर्य नमस्कार इन इटसेल्फ इज़ वेरी वेरी हाईली एनर्जेटिक एंड वेरी वेरी effective kind of yoga which cures multiple diseases because it increases the flexibility in the body and it also works on different joints and your breathing techniques. It removes and clears of many diseases inside your body. आप वैक्सीनेशन ज़रूर कराइए, वो भी एक तरह का एक इम्यूनिटी है, एंटीबॉडीज़ जनरेट करता है. साथ ही में रोज़ आप एटलीस्ट हाफ एन आवर प्राणायाम और सूर्य नमस्कार को दीजिए. तो आप सब जानते हैं मैं एक साइकेट्रिस्ट भी हूँ और एक योगा टीचर भी हूँ. सो आई एम सर्टिफाइड एज 500 hours ERYT yoga teacher from US Yoga Alliance and also a psychiatrist by profession. So I try to collaborate both the things. चाहे वो हमारे मानसिक हो, मनोचिकित्सक जो हमारी एंग्जाइटी है, डिप्रेशन है, और साथ में योगा को मिलाकर और दवाइयों को मिलाकर मैं कोशिश करता हूँ कि मैं अपने पेशेंट्स को एक किसी तरह दोनों का बेनिफिट दे सकूं. तो अगर आपको लगता है कि आप इनमें से किसी चीज़ से सफ़र कर रहे हैं, किसी बीमारी से जो आपको दिक्कत कर रही है, आपकी मानसिक बीमारी, तो आप मुझे नीचे दिए गए नंबर पे भी कंसल्ट कर सकते हैं. मैं आशा करता हूँ कि ये जो मैंने आज प्राणायाम आपको सिखाए हैं, ये आप सबको कुछ ना कुछ लाभ देंगे और आपकी इम्यूनिटी बढ़ाएंगे. और मैं यही प्रार्थना करूँगा कि कोविड जल्दी से जल्दी ठीक हो जाए, इस दुनिया से चला जाए, ताकि हम भगवान की कृपा से, गणेश जी की कृपा से वापस फिर से एक नॉर्मल लाइफ में आ जाए. हरि ओम, नमस्ते.